Hi, good evening, wonderful souls. I hope you are having a blessed time. I am your host, Dr. Rohit Bansal, and welcome to the first episode of the podcast Coping with Breakups, Healing, and Moving Forward. Breakups have become a major area of concern nowadays, and it can be very challenging experience for the people who are encountering it because after the breakup they can feel lonely. So whether you are navigating breakups in your life or you want to help someone, then this podcast is certainly for you. In this episode, we will discuss various causes of breakups, what are the ifs and emotional breakdowns associated with breakups, and how can someone navigate with these setbacks and start the healing journey. So, have a cup of coffee, sit tight, and let us start the healing journey. Now, I am feeling happy to introduce our guest speaker, Dr. Aarti Sahu. She is a consultant gynecologist, relationship counselor, life coach, storyteller, singer, and multifaceted personality. She is the director of Sahu Wellbeing Clinic and runs her own YouTube channel, Let's Talk. She is an amazing singer and has participated in a number of workshops, conferences, and online events. Thank you so much, ma'am, for sparing invaluable time and accepting my invitation to be part of this wonderful podcast. I hope we will have an amazing time and will offer invaluable insights for the people who are navigating with breakups in their life. Over to you. Thank you so much, Dr. Rohit. Thank you so much for your generous introduction. And I'm so glad that we are doing this podcast finally after so much time. Yeah. And the topic, as you wisely said, the topic is something dealing with a breakup, dealing with a heartbreak in general, is something that everybody as a human being encounters. It may be heartbreak in a relationship, it may be heartbreak in a romantic relationship or some other close friendship. Otherwise, also as human beings, we are prone to suffering heartbreaks, right? So if we are aware of the process and the emotions that we will go through it will become easier for us to navigate it. तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आज के लिए चुना है और मुझे लगता है हमारी सभी ऑडियंस, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, कभी ना कभी दिल का टूटना होता ही है और एवरीबडी विल बी बेनिफिट बाय दिस टॉपिक. यस. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, प्रिंट मीडिया में देखते हैं, सेलिब्रिटीज को सुनते हैं या अपनी सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, सभी के पास एक ही बात होती है, ब्रेकअप ब्रेकअप एंड ब्रेकअप. तो ऐसा भी क्यों हो रहा है? इतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकअप्स क्यों हो गई है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्रेकअप? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा. देखिए डॉक्टर रोहित, रिलेशनशिप में मैं एक मोटी सी बात कहती हूँ. Two people are always growing. Either they grow together or they grow apart. या तो वो एक साथ आ जाएंगे या वो एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाएंगे. तो ब्रेकअप, जैसे आपने कहा, ब्रेकअप के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. दे कैन बी इनकम्पैटिबिलिटी, दे कैन बी सम काइंड ऑफ अ चीटिंग और बिट्रेयल, दे कैन बी जनरल कन्फ्लिक्ट्स, जो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स शुरू में रहे और उसके बाद वो बड़े बड़े मुद्दे बन गए और कपल उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पा रहा. पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं. कई बार होता है कि आप लाइफ के उस पड़ाव में होते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते. कोई सडनली बाहर जॉब किसी को मिल गया या किसी ने पढ़ाई का आगे सोच लिया और लगा कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पाएगा. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ब्रेकअप का. बट अगर मैं कॉमन चीज कहूँ, जो कॉमन तार सभी ब्रेकअप के अंडर है, वो ये है कि एक या दोनों पार्टनर ये सोचते हैं कि भविष्य प्रेजेंट पार्टनर के बिना बेहतर है. कॉमन रीजन ये है कि उनको लगता है कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता. फ्यूचर इस पार्टनर के बिना ज्यादा बेटर हो सकता है, चाहे वो चीटिंग में हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे कंफ्लिक्ट में हो, जो भी हो. अंडरलाइंग जो रीजन रहता है वो ये रहता है कि द फ्यूचर सीम्स बेटर विदाउट द एग्जिस्टिंग पार्टनर. तभी ब्रेकअप होता है. तो ऐसी सूरत किसी भी उसमें आ सकती है, जैसे हमने अभी कॉजेस डिस्कस किए. तो ब्रेकअप के ये सारे जनरली कॉजेस रहते हैं. एक मेन रीजन ये भी है, लैक ऑफ लॉयल्टी, क्योंकि सोशल मीडिया. चीटिंग मैंने कहा. जी. यस.
चीटिंग तो बहुत बड़ा कॉज है, और जब भी हम ब्रेकअप सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है वो चीटिंग ही आता है। चीटिंग ही और खास तौर पे आजकल जब सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा आप किसी के अंदर घुसने का बहुत ज्यादा आपको है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज, यू कैन व्हाट्सएप, देयर आर चैट रूम्स वेयर यू कैन डिलीट द रिकॉर्ड एंड नोबडी कैन कम टू नो कि आप लोगों ने चैट की है। तो वो जो इस तरह का प्राइवेसी आपको मिल जाता है, लोग समझते नहीं चैट रूम भी एक तरह का रूम है जहाँ पे आप प्राइवेटली बात कर रहे हैं, तो उस तरह की चीटिंग को चीटिंग नहीं मान। और सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्रेजेंस जो लोगों की है वो बहुत बड़ा कारण है इस तरह के अफेयर्स का सामने आना या चीटिंग का होना, डिसलॉयल्टी का होना रिलेशनशिप में। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस भी इसका मेन रीजन है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना देना चाहिए, तो फिर कंपैटिबिलिटी नहीं बनती और कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रोहित, इस पे मैं आई जस्ट लाइक टू ऐड, आजकल एक नया टर्म आया हुआ है वर्क प्लेस हस्बैंड वाइफ। कि आप सुबह जब उठते हैं बिस्तर से तो आपके पास आपकी लाइफ पार्टनर है या हस्बैंड है, आप उनको कैसे देखते हैं? घर के कपड़ों में, नाइट सूट में, बाल बिखरे हुए सब, और फिर तैयार होकर आप 8-10 घंटे के लिए काम करने जाते हैं, जहाँ पे आप बड़े स्मार्ट बन के जाते हैं, सामने वाला भी स्मार्ट बन के आता है, आप अपने बेस्ट स्किल सेट्स, बेस्ट कम्युनिकेशन सब कुछ लेकर आते हैं। तो जिनके साथ आप 8-10 घंटे उस अवस्था में गुजारते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल स्मार्ट, प्रोडक्टिव, एक्टिव हैं, तो नेचुरल सी बात है कि एक आकर्षण होना बड़ा स्वाभाविक है। और बहुत सारे अफेयर्स जो है वो क्लासरूम्स में, ट्यूशन सेंटर्स में, वर्क प्लेस पे होते हैं। वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग। तो वो जो नया टर्म कॉइंड है वर्क स्पेस स्पाउसेस, वो आजकल हो गए हैं कि घर वाली बीवी अलग है और ऑफिस वाली बीवी अलग है। तो अगेन एज यू राइटली पॉइंटेड, ये बहुत ही कॉमन कॉज है आजकल के ब्रेकअप्स का। जी। और आजकल यंगस्टर्स बहुत इजीली कह देते हैं कि ब्रेकअप हो गया, कहना कितना आसान है, लेकिन उसके पीछे जो वो सेटबैक उसको मिला है, जो इमोशनल टर्न अराउंड उसका हुआ है, वो शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों की जो कमिटमेंट की इंटेंसिटी है वो अलग है। एक आदमी के लिए वो कैजुअल अफेयर है, टाइम पास है, दूसरा बंदा बिल्कुल इन्वेस्टेड होता है रिलेशनशिप में। तो आप ब्रेकअप का दर्द कितना महसूस करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप इमोशनली उसमें कितना इन्वेस्टेड हैं। अगर दोनों की सेम लेवल ऑफ इंटेंसिटी है तो रिलेशनशिप कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Maybe yes. Agar if both of them are committed to making the relationship work, then definitely they will find strategies to cope with the whatever conflicts they are facing. Yes. तो इसमें आगे मैं ऐड करना चाहूंगा, how do both parties experience breakups? यहाँ पे बड़ी मजेदार आपने बोथ पार्टीज कह के ना, यू हैव हाईलाइटेड द फैक्ट। देखिए, जब भी हम ब्रेकअप सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वही आता है कि एक बहुत दुखी सा व्यक्ति जो देवदास सा बन गया है, या एक बहुत रोती हुई लड़की। बट आप देखें कि जब भी ब्रेकअप होता है तो उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक ब्रेकअप करने वाला और एक जिसके साथ ब्रेकअप हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों कपल्स एक म्यूचुअल डिसीजन पे आते हैं कि बात नहीं बन रही, लेट्स सेपरेट। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ब्रेकअप, क्योंकि वो थोड़े समय से तैयार हो रहे होते हैं, ऑलरेडी उनको पता होता है कि अंडरलाइंग इश्यूज हैं एंड द रिलेशनशिप इज गोइंग टू फॉल अपार्ट, सो दे कम टू अ म्यूचुअल कंक्लूजन दैट द रिलेशनशिप विल फॉल। बट इन केसेस वेयर देयर इज बिट्रेयल, देयर इज चीटिंग, देयर इज अफेयर, ऐसे में एक पार्टी को पहले पता होता है कि वो ब्रेकअप की तरफ जा रहे हैं और दूसरी पार्टी अनअवेयर होती है कि उनके साथ ऐसा कोई इशू रिलेशनशिप में आने वाला है। तो जो पार्टी ब्रेकअप करना चाह रही होती है, क्योंकि वो मेंटली ऑलरेडी 2-3 महीने 4 महीने में वो सफर तय कर चुके होते हैं, तो उनका इमोशनल इंटेंसिटी उस समय इतना नहीं होता, बिकॉज वो छोटे छोटे हार्ट ब्रेक्स या तो सफर कर चुके हैं या वो कहीं और इन्वेस्टेड हैं, तो उनके इमोशंस वहां पे इन्वेस्टेड होने की वजह से वो इतने दुखी नहीं है। उनको ब्रेकअप करने के बाद एक रिलीफ की फीलिंग महसूस होती है कि चलिए अब मैं ये कहना चाह रहा था या चाह रही थी और मैं कह नहीं पा रही थी, नाउ दैट आई हैव सेड इट, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट इट। बट जिसके साथ ब्रेकअप हो रहा होता है, क्योंकि उसको वो ब्रेकअप का समाचार सेकंड्स के अंदर डाइजेस्ट करने को मिलता है, तो उनका जो इमोशनल इंटेंसिटी रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो आप देखेंगे आजकल लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं, जो ब्रेकअप करने वाले हैं वो टेक्स्ट पे या कॉल पे ब्रेकअप करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कौन इतना ड्रामा सहेगा और कौन कैसे मैं हैंडल करूंगा या करूंगी ना। तो यू विल फाइंड आइदर पीपल विल जस्ट ब्लॉक
or they'll send Just a a simple text या message. phone call. Let's separate. Absolutely. हाँ, let's separate. Or we need a break. That is how they go about it. Yeah. So दोनों पार्टीज जो हैं, जो ब्रेकअप करने वाला और जिसके साथ हो रहा है, दोनों उसको बिल्कुल अलग तरह से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. कभी-कभी कपल्स में इमैच्योरिटी भी होती है कि मैसेज कर दिया, जो आपने बोला ब्लॉक कर दिया, और फिर कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था. इट इज नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर दिस. ऐसे भी होता है. तो डॉक्टर रोहित, वो जनरली कॉन्शियस की वजह से नहीं होता. वो जनरली क्या होता है कि जब आप दूर जाते हैं तो आप जो लोनलीनेस फेस करते हैं, और कई बार जो सियाने मैच्योर कपल्स होते हैं वो डेफिनेटली बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमसे क्या गलती हुई रिलेशनशिप में, व्हाट वी कुड हैव डन बेटर, यू नो, एंड देन दे कम बैक. फिर वो जब मैच्योरिटी के साथ आते हैं तो रिलेशनशिप में कंटिन्यू टू अ लॉन्गर एक्सटेंड. बट जनरली क्या होता है कि जब जैसे अलग होते हैं वो रिलीफ के बाद एकदम से फिर लगता है कि रिबाउंड, विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं. वो समय जो आप इकट्ठे बिताते थे, अब क्या करें, हमें तो कुछ करना ही नहीं आता उस समय में, लाइक सो फिर वो रिलेशनशिप भी रोजी लगने लग जाता है. तो ऐसे में कपल्स कई बार आते हैं, एंड देन जो मेच्योरिटी के साथ नहीं आते, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ नहीं आते, आप देखेंगे वो 2-3 महीने साथ रहते हैं और उसके बाद दोबारा दे break up, and I think they finally break up. Right. So we see a lot of patterns, clean breakups, and then another pattern is कि they'll 2-3 बार break up till finally break up. और थर्ड जो होता है कि जो ब्रेकअप करने वाला होता है वो थोड़ा सा बार्गेनिंग करता है कि लेट्स बिकम फ्रेंड्स. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ब्रेकअप दैट दे ट्राई टू डू. नेगोशिएशन सा चलता है. तो अभी सी डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ब्रेकअप. तो क्लीन स्वीप जनरली मुश्किल होता है अनलेस एंड अनटिल चीटिंग हो रही हो और नया पार्टनर बिल्कुल तैयार खड़ा हो, तो आप फिर पीछे वाले को मुड़ के नहीं देखते. Otherwise, sometimes it takes time. Even the breakup process takes time. Right. Yes. Tell me why breakups are so painful, and what is the common emotional reaction of people? Okay, so देखो, breakups are definitely because your heart is invested, your emotions are invested. तो सबसे पहले तो जो रीजन पेन का है कि आपके इमोशंस और इन्वेस्टेड होते हैं और एक अटैचमेंट होता है उन लोगों के साथ. तो वो जो बॉन्ड हम बनाते हैं एक कपल बनने के लिए, वो जब टूटता है तो डेफिनेटली पेन आप महसूस करते हैं. एंड देन देयर इज अ साइंटिफिक बेसिस फॉर दिस पेन आल्सो, बिकॉज जब आप किसी के साथ होते हैं तो जो बॉन्डिंग हार्मोन्स होते हैं हमारे, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, इनकी बहुत अच्छी मात्रा बॉडी में होती है. अब सडनली अगर अल्कोहलिक से उसका अल्कोहल ले लिया जाए तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे. सेम ऐसे ही ब्रेकअप के बाद जब ये हार्मोन्स या जब ये नीचे गिरते हैं केमिकल्स, तो बॉडी उसको एज ए विड्रॉल परसीव करती है और वो पेनफुल महसूस होता है. उसके अलावा मी से वी होने का सफर, मतलब किसी के साथ कपल करने का जो सफर होता है, उसमें आप अपने आइडेंटिटी को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि किसी के साथ मर्ज हो सके. अब सडनली अगर सामने वाला आपकी लाइफ से चला जाए तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो जाता है कि मेरा इस रिश्ते के बिना या मेरा इस आदमी के बिना क्या वजूद है, देयर इज अ लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी. तो वो भी पेनफुल परसीव होता है. फिर अगर चीटिंग हुई हो तो वहां पे रिजेक्शन जो होता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक जेलसी, एक कंपैरिजन की भावना जो है, वो भी बहुत दुख देती है कि मेरे से बेहतर लगा इसको, या प्रोबेबली आई एम नॉट इनफ, शायद मैं इसके लिए कंप्लीट नहीं हूँ. तो वो चीजें जो हैं वो होती हैं. फिर फ्यूचर को लेके आप दोनों ने सपने बुने होते हैं और वो फ्यूचर का लॉस, वो ड्रीम्स का लॉस, वो होप का लॉस जो है वो भी बहुत दुख देता है. तो ये सारे हैं. उसके अलावा फिर जब आपको लगता है कि ऐसा प्यार मुझे दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, शायद मैं दोबारा से मोहब्बत नहीं कर पाऊं, तो ये भी एक बहुत डर है कि फ्यूचर कैसे नेविगेट होगा, मेरा तो जीवन भर का प्यार चला गया. तो ये सारी चीजें हमें डराती भी हैं और बहुत ज्यादा दर्द भी देती हैं. तो दैट इज व्हाई ब्रेकअप्स आर painful in nature, and we go through a lot of emotions. आप सैडनेस फील करते हैं, लोनलीनेस करते हैं, गुस्सा, एंगर करते हैं, जेलसी अगर दूसरा कोई पार्टनर है, रिजेंटमेंट के मेरे साथ ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, एंजाइटी फ्यूचर को लेके, अननोन को लेके आपके मन में बहुत ज्यादा एंजाइटी हो सकती है. तो ये सारे इमोशंस आप फेस करते हैं जब आप ब्रेकअप के थ्रू गुजर रहे हो, और बड़ा लाजमी है. और कई बार आप
शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब आपको लगता है कि प्रोबेबली मैं इनफ नहीं हूँ. दे मे बी अ फीलिंग ऑफ गिल्ट कि शायद मैंने ऐसा नहीं किया होता या ऐसा नहीं कहा होता, तो मे बी आज के दिन ब्रेकअप नहीं होता. तो these are the various emotions a person goes through. Okay. Right. Tell me, what are the stages of griefs associated with breakups and how can someone navigate them? Okay. So आपका क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेकअप इज अ सॉर्ट ऑफ अ लॉस. और जीवन में जब भी कोई लॉस हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी संभावना का हो, चाहे वो किसी स्थिति का हो, कोई आपके अच्छी जॉब मिली है एंड सडनली वो आपके हाथ से चली जाए, या आपका कोई फ्रेंड है वो चला जाए, तो हम उसको एज अ लॉस परसीव करते हैं. और जब भी हमारी लाइफ में कहीं लॉस आता है तो उसकी ग्रीफ, उसका एक मातम हम जरूर मनाते हैं, और वो मातम मनाने का एक प्रोसेस रहता है. तो अगर हम अवेयर हों कि ये हमारे नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन होगा और हम नेचुरली इस कर्व से निकलेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा हमें नेविगेट करने में ये जो भी इमोशंस हमारे सामने आते हैं. तो डॉक्टर रोहित, जब भी हम लॉस फेस करते हैं लाइफ में, तो 3-4 ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू हम गुजरते हैं. और ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक लीनियर ऑर्डर में आए. कई बार होता है कि हमने एक स्टेज क्रॉस की, फिर थोड़े दिनों बाद घूमकर हम दोबारा उसी पे वापस आ जाते हैं. तो सबसे पहली स्टेज होती है डिनायल की, कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते. आपको आपके पार्टनर ने कहा कि वी आर ब्रेकिंग अप, आपको लगता है मजाक कर रहे हैं या दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, या ये शायद इस समय के लिए गुस्सा है और शायद थोड़ी देर के बाद खुद ही आके माफी मांगे, या शायद मैं माफी मांग लूं तो ये बेटर फील कर रहे हैं एंड वील बिकम अ कपल अगेन. तो द फर्स्ट स्टेज इज डिनायल. यू नो, डिनायल कैन गो ऑन फॉर अ वीक और 2 weeks, एंड उसके बाद फिर डिनायल के बाद जब आपको ये समझ आ जाता है कि सामने वाला मानने नहीं वाला, तो फिर आता है गुस्सा. और ये गुस्सा बड़ा मजेदार है, क्योंकि गुस्सा आपको सामने वाले पे भी आता है. अगर उसने कोई नई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया तो उन पर भी आता है कि हमारा हैप्पी कपल था और इसके बीच में ये लोग आ गए. परिस्थितियों पर भी आ सकता है. कई बार जैसे मैंने बताया, किसी का कहीं जॉब लग गया या किसी को कोई बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मिली और वो चले गए, तब भी हो सकता है. और बहुत सारा गुस्सा जो है वो हमारा खुद की तरफ भी डायरेक्टेड होता है. हम अपने आप से भी गुस्सा होते हैं कि भाई यू नो मे बी कुछ गलतियां की हैं, मे बी मैं कुछ और कर लेता या कर लेती. तो देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर दैट वी गो थ्रू आफ्टर द डिनायल फेज. फिर उसके बाद आता है बार्गेनिंग. बार्गेनिंग में अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम मान जाओगे, अगर मैं ऐसा कर लेता तुम बताओ, मतलब इस तरह का बार्गेनिंग करने की किसी भी तरह से. एग्जैक्टली कि तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ, या मेरी आदत बदलने को तैयार हूँ. जो आप पहले नहीं करने के लिए रेडी होते, अब आप हर चीज करने के लिए आगे जाना चाहते हो. एग्जैक्टली. तो क्योंकि आप विड्रॉल भी महसूस कर रहे होते हैं और आप किसी भी कीमत पे वो जो इमोशनल सेफ्टी नेट है उसको वापस पाना चाहते हैं. तो देन यू कम टू द बार्गेनिंग स्टेज, जहाँ पे आप सब तरह के प्रलोभन और हर चीज के लिए रेडी हो जाते हैं, एंड you go through that stage. After the bargaining stage, then you come to another stage in which you feel depression. Finally it sets in कि bargaining नहीं चलेगा, anger नहीं चलेगा, denial नहीं चलेगा, ये वाकई मेरे साथ हो रहा है. और फिर आप उसका जो दर्द है, जो उसका सैडनेस है, वो महसूस करना शुरू करते हैं. देन लोनलीनेस हिट्स यू. तो आपको जो इमोशनली जो आप अकेला महसूस करते हैं, जो सैड महसूस करते हैं, दो स्टेजेस ऑफ सैडनेस एंड लोनलीनेस देन हिट यू, एंड यू गो इनटू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, वेयरइन आपका किसी से बात करने को मन नहीं करेगा. आप अपने दोस्तों से, परिवार से कट के रहेंगे. वो जो दुखी, जितना आपका प्लेलिस्ट में दुखी वाला म्यूजिक है, वो सारा आपको मुश्किल होता है, जो इमोशनली वीक होते हैं. बिल्कुल. बट आई थिंक सैडनेस होना बड़ा लाजमी है डॉक्टर रोहित. आप एक रिश्ते में हैं और आप सडनली आपको लगे कि आप अकेले हो गए हैं, तो दुख होना तो बड़ा लाजमी है. इट इज ह्यूमन. और फिर उसके बाद आती है स्टेज एक्सेप्टेंस की. अब जब एक्सेप्टेंस की स्टेज पे हम आते हैं तो हम फाइनली मान जाते हैं कि हाँ, ये हो चुका है, पर दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. इसके बाद भी जिंदगी है, इसके बाद भी मैं हूँ, और मुझे किसी भी तरह से इस रिलेशनशिप के बिना भी खुश रहना सीखना पड़ेगा. तो ये बहुत खूबसूरत स्टेज होती है, पर यहाँ तक पहुंचने का मतलब ये नहीं कि आप एट पीस हो गए. You will still keep revisiting the old stages.
जैसे आपको कॉमन फ्रेंड्स मिल गए तो आपको लगेगा कि मैं ऐसा कोई मैसेज दे दूं तो शायद ये उनको कन्वे कर दें कि मैं दुखी हूं या परेशान, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंस। तो आप किसी ना किसी स्टेज में आगे पीछे घूमते रहते हैं टिल यू फाइनली रीच अ प्लेस के जहां आप मूव ऑन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो कोई भी लॉस हो लाइफ में, मेरे को लगता है कि हमारे जितने यंग ऑडियंस हैं और जितने ओल्ड लोग भी जुड़े हैं, वो ये स्टेजेस याद करें। इट इज वेरी ह्यूमन टू गो थ्रू ऑल दीज स्टेजेस एंड टू एक्नॉलेज कि हाँ, हम ऐसा फील कर रहे हैं। जी, राइट। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हाउ कैन समवन नेविगेट द इंटेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड एंगर आफ्टर ब्रेकअप? राइट। डॉक्टर रोहित, ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ भी हो रहा हो, वन हैज टू वैलिडेट द इमोशंस। जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसको पहले आपको ऑनर करना पड़ेगा कि हाँ, ये इमोशन मेरे अंदर आ रहा है। तो चाहे वो दुख हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो लोनलीनेस हो, चाहे वो एंगर हो, यू हैव टू एक्नॉलेज के दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। उसको दबाने से या ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए ये कहने से ना, आप केवल अपना हीलिंग का जर्नी प्रोलॉन्ग करते हैं। एक बार आप एक्नॉलेज कर लेते हैं और उस पेन के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी आप हीलिंग का प्रोसेस फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज to acknowledge the emotion and to validate that whatever you're feeling is absolutely normal and absolutely right. That's the first step to go about it. उसके बाद सैडनेस एक ऐसा इमोशन है जहाँ पे हमें ना मजा सा आना शुरू हो जाता है जब हम सैड होना शुरू होते हैं। मतलब दुखी बैठना, अपना ध्यान न रखना, दुखी गाने सुनना, यू नो, गजलें सुनना। तो try to limit the time in which you are delving in those emotions. आप एक फिक्स टाइम रखें जिसमें आप सोचें कि हाँ, मैं बैठ के ग्रीव करूंगा, मैं इस टाइम में दुखी होऊंगा या मातम करूंगा अपने लॉस्ट रिलेशनशिप का। डू नॉट स्प्रेड द इमोशन इन द एंटायर डे। ट्राई टू फॉलो योर रूटीन। ऐसा नहीं हो कि भाई आप सुबह उठे, नहाए नहीं, धोए नहीं और सुबह से बैठ गए दुखी होने के लिए कि भाई मैं दुखी होऊंगा ही होगा। तो इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर स्टडिंग, आप जो भी काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपना रूटीन फॉलो करें और डेफिनेटली अपने ग्रीविंग के प्रोसेस के लिए एक टाइम रखें। उस टाइम को ऑनर करें, उस टाइम की इज्जत करें और अपने इमोशंस को भरपूर फील करें। तो दैट्स द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज कि सेल्फ केयर को नहीं करें। खाना नहीं खाना या जो एक्सरसाइज नहीं करना, फ्रेंड से नहीं मिलना, मतलब ये सारी चीजों को आपको अपने सेल्फ केयर के रूटीन को आपने बिल्कुल भी लेट गो नहीं करना है। कोशिश करें कि जो काम जिस समय पे आप करते थे उसको वही उसी समय करें और माइंडफुलनेस के साथ करें। जब आप माइंडफुल होंगे, उस काम को डूब के करेंगे, तो आपके जो बैकग्राउंड में जो स्टोरी चल रही है उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। तो द थर्ड इम्पॉर्टेंट tip is that you should take full care of yourself as an individual. Fourth very important tip is that you should try to pack up stuff जो भी आपके एक्स ने आपको गिफ्ट्स दिए थे, टेडी बियर्स हैं, फोटो फ्रेम्स हैं, कार्ड्स हैं, गिफ्ट्स हैं, उनको बंद कीजिए, कार्टन में डालिए। उनका जो टेक्स्ट आप बार बार पढ़ रहे हैं या उनका फोटो बार बार देख रहे हैं तो उसको डिलीट करें या आर्काइव कर दें, ताकि आप बार बार आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाए और वो फीलिंग्स आपको सैडनेस की नहीं आए। और खास तौर पर लोनलीनेस के लिए मैं डॉक्टर रोहित कहूंगी, क्योंकि आप जो कपल्स होते हैं ना, उनको आदत होती है उसी टाइम पे घूमने निकल जाना शाम को, या फोन कॉल पे लंबी लंबी बात होना। तो ऐसे टाइम में मेक श्योर करें कि आप या तो अपने आप को किसी एक्टिविटी में एंगेज रख रहे हैं या आप अपने फ्रेंड्स से या जो सपोर्ट नेटवर्क है उनके साथ वो समय बिताएं, ताकि वो लोनलीनेस की फीलिंग आपको नहीं आए। तो ये छोटी छोटी चीजें करने से हमें ब्रेकअप तो देखो है पेनफुल है, पर उसका जो पेन है, जो इंटेंसिटी है, हम उसको थोड़ा टॉलरेबल बना सकते हैं और हीलिंग की जर्नी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी बात में ऐड ऑन करना चाहूंगा, दो तरह के लोग होते हैं ब्रेकअप्स की जब हम बात करते हैं। एक तो वो कि जो इसको नॉर्मल लाइफ प्रैक्टिस लेते हैं कि हो गया, ठीक है, लेट इट बी। दूसरे वो होते हैं जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं और वो उसको बहुत इंटेंस वे में लेते हैं कि अभी लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे साथ व्हाई इट हैज हैपेंड टू मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और बार होता है, बिल्कुल पैनिक क्रिएट करते हैं खुद को लेके और उन चीजों को सोचते हैं कि ये क्यों हुआ। फिर वो स्ट्रेस, एंजाइटी और अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाते हैं।
नहीं, तो बिल्कुल सही ऐसे कहा लोगों को डॉक्टर लॉनलीनेस रोहित। ज्यादा फील होती है और उनको समझ नहीं आता डेफिनेटली। कि हाउ कैन आई रिकवर फ्रॉम दिस स्टेज। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे में इन्हीं लोगों को बहुत जरूरत रहती है काउंसलिंग की भी डॉक्टर काउंसलिंग की, रोहित। राइट। हाँ, तो हम काउंसलिंग का भी वो रोल दरकिनार नहीं कर सकते, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रिक्वायर प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम। और अभी भी हमारे देश में प्रोफेशनल हेल्प लेना, मैं अब जैसे रिलेशनशिप काउंसलर हूँ तो मेरे पास कुछ बार कपल्स ऐसा होता है कि वन ऑफ देम विल कम, और मैं सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, यंगस्टर्स की बात नहीं, इवन अडल्ट्स कम टू मी विद ब्रेकअप्स। एंड बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप एक काउंसलर से मिले जो कि बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आपको सपोर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ पे इमोशनली वीक फील करें तो काउंसलर की हेल्प लेने से चुके नहीं। इसी में एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो इमोशनली वीक पीपल होते हैं ना, वो ब्रेकअप के बाद भी अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, लाइक पुरानी हम्म बातों को पकड़ लिया, उन यादों को हम्म दोबारा से संजोने की हम्म कोशिश करते हैं। तो हम्म ऐसे हम्म। लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जब उन्होंने ब्रेकअप मैं कर लिया, तो व्हाई दे आर गेटिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स अगेन? देखिए, आपने एक तरफ कहा इमोशनली वीक और क्वेश्चन ये पूछा क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को और अपने पार्टनर को एज अ क्रच इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यस यस। राइट। मैं बार बार मैं कॉलेजेस और स्कूल्स में जाती हूँ तो मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहती हूँ कि पहला रिश्ता खुद से, दूसरा खुदा से, खुदा से। तीसरा खुदा के हर बंदे से। ठीक है। तो क्या होता है, जो इमोशनली लेबाइल लोग होते हैं वो सामने वाले को खुदा बना लेते हैं। अब सडनली जब ब्रेकअप हुआ तो खुदा ही गायब हो गया, तो उनको अपने जीने का, एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं समझ आता, क्योंकि जो सेल्फ लव है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए सामने वाले के लव में ही अपना लव ढूंढ रहे होते हैं। तो वेरी राइटली यू सेड कि ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेकअप होने का मतलब ही ये है कि आप अपने आप से प्यार करना सीखें। इसका पूरा आइडिया ही यही होता है। और सेकंड, जो प्रॉब्लम आती है इमोशनली वीक लोगों के साथ, क्योंकि वो पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो नंबिंग सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल, ड्रग, इन सब की तरफ भी बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं ताकि उनको उस पेन में से ना निकलना पड़े। जैसे सर्जरी से पहले हम लोकल एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया दे देते हैं, उस पेन का दंश उनको महसूस ना हो, उसके लिए दे विल, आप देखेंगे वो देवदास जैसी जो मूवीज बनी है वो इसी चीज पे बनी है। तो addiction is another very big problem which happens if a person is not ready to face and go through the emotions which a person needs to after a breakup. So that is also very वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा सचेत और सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे में फैमिली वालों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा सपोर्टिव रहें, ताकि उनका जो यंग एडल्ट है या जो घर के लोग हैं वो इस तरफ की तरफ ना कहीं फिसल जाएं। इसी से जुड़ा एक पहलू मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ब्रेकअप हो गया और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम कि आपका अपने एक्स पार्टनर के साथ किसी वर्क प्लेस पे या किसी सोशल इवेंट पर ऑकवर्ड एनकाउंटर हो गया, तो अब उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपस में बात करें या इग्नोर करें, बिकॉज बड़ा ऑकवर्ड क्रिएट होता है सिचुएशन। बिल्कुल, देखिए एनकाउंटर तो एनकाउंटर होता है, ऑकवर्ड हमारे रिएक्शन से बनता है, राइट। तो हमारा जो यू मीट अ पर्सन आइदर एट अ वर्क प्लेस, और मैंने जैसे बताया ट्यूशन सेंटर या जहाँ पढ़ने जाते हैं, जनरली वहीं पे लोगों के साथ आप मिलते हैं और उन्हीं के साथ आप रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं। अब कल के दिन उसी वर्क प्लेस पे जब काम करना हो तो थोड़ा सा सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप इमोशनली स्टेबल प्लेस में नहीं हैं, तो किसी भी तरह का इंटरेक्शन अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि उसके एस्केलेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अभी आपके इमोशंस रॉ हैं, आप ना चाहते हुए भी ऐसी कोई बात कह देंगे जिससे आपको बुरा लगे। और कई बार ऐसा होता है कि उसी ऑफिस पार्टी में या उसी वर्क प्लेस में हो सकता है आपके एक्स अपनी नई गर्लफ्रेंड या नए बॉयफ्रेंड के साथ आए हों। तो अगर आप अभी तक अपनी एक्सेप्टेंस की स्टेज तक नहीं पहुंचे, तो इट इज बेटर कि आप उनको अवॉइड करें। मैं इग्नोर करना नहीं कहूंगी, मैं अवॉइड करना कहूंगी। और अगर आपको एंटिसिपेटेड है कि आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे आपका उनसे ऐसे मिलना होगा, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने साथ अपना एक बैकअप फ्रेंड लेके जाएं, ताकि आप उस माहौल में अकेला नहीं महसूस करें। आपके पास आपका फ्रेंड हो बात करने के लिए, आपको होल्ड करने के लिए, तो बेटर रहता है। हाँ, जहां तक रही वर्क प्लेस की बात,
तो we have to be professional, we have to be courteous, we have to be civil. आप उतनी ही बात करें जितना कि जरूरी है वर्क प्लेस पे, वर्क सफर ना करे जिसमें किसी भी तरह की पर्सनल इंटरेक्शन अगर सामने वाला भी कोशिश कर रहा है तो वर्क प्लेस पे अवॉइड कर लेना बेटर रहेगा। एक थर्ड वो रहता है कि क्योंकि वर्क प्लेस में आप कॉमन, सभी के कॉमन कोलीग्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, तो कोशिश करें कि अपने एक्स के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कहें जो कि सामने वाले को उनके प्रति पोलराइज करे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई रिमार्क पीठ पीछे नहीं पास करें जहाँ पे जिससे ऑफिस का माहौल बिगड़े या आपके बीच में कोई तनाव आए। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू कैन फॉलो एट योर वर्क प्लेस और स्टडी प्लेस, जहाँ पे भी आपका कॉमन रहा है, जहाँ से आपके साथ लोग और भी जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर रोहित? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइए कि हाउ कैन समवन नेविगेट कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल आफ्टर ब्रेकअप? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ और उनका भी दोस्त है, वो जी उनको गॉसिप करना पसंद आता है। लाइक उन्होंने कुछ आपसे इंटरेक्शन किया और आपकी बात को आपके पार्टनर को बता दिया और उसने कुछ एड ऑन कर दिया, तो ही कैन एस्केलेट द इशू टू ए ग्रेट एक्सटेंट और ही कैन हैंडल इट वेरी इफेक्टिवली। सो इट डिपेंड्स अपॉन हिज मैच्योरिटी लेवल। तो इस तरह से जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, कॉमन फ्रेंड्स जो होते हैं आप देखेंगे कि कुछ एक बातें जिनके साथ ब्रेकअप हो रहा है उनको भी समझनी है। मैं दोनों की तरफ से बात करूंगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है और आपका म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल है, तो पहली बात तो जैसे बताया कि कुछ भी बैड माउथिंग अपने एक्स के बारे में नहीं करें। अगर आप तैयार नहीं हैं शेयर करने के लिए तो अपनी बाउंड्री को अपहोल्ड करें और बताएं कि जी आप मेरे से इस विषय में अभी कोई बात ना करें तो बेहतर रहेगा। तो यू कैन ऑलवेज टेल द अदर पर्सन दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कमेंटिंग ऑन दिस थिंग। ठीक है, किसी भी तरह का अनाप शनाप कुछ कह देने से बेटर है कि आप अपना बाउंड्री रखें और कहें कि इस बारे में मेरे से प्लीज बात नहीं करें। थर्ड, ये बात मान के चलें कि साइड टेकिंग होगा। कुछ जो कॉमन फ्रेंड्स थे जो अभी तक कॉमन थे, कुछ उनकी तरफ जाएंगे, कुछ आपकी तरफ जाएंगे। तो इसको लेके भी किसी तरह का रिजेंटमेंट या गुस्सा रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है। ठीक है जी। और आप देखेंगे कुछ वेल विशर फ्रेंड्स भी होंगे जो जिन्होंने आपकी मोहब्बत की कहानी चलते हुए देखी होगी और वो चाहेंगे कि आप दोबारा से एक साथ हो जाएं। कई बार उनके जो एफर्ट्स होते हैं बड़े वेल मीनिंग और वेल टाइम्ड होते हैं, तो कई बार कपल्स इकट्ठे भी हो जाते हैं। और कई बार वो उनकी अपनी तरफ से कोशिश बहुत अच्छी होती है पर वो मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। तो उतना ही शेयर करें अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ जिसको बताने में आप कंफर्टेबल हो और किसी भी तरह की बैड माउथिंग आपके एक्स को लेके जिसमें ना हो। तो मेरा आपको यही टिप रहेगा कि जी, ये पहचानना भी जरूरी है कि वो आपका कितना अच्छा दोस्त है और उसने कितना आपको सपोर्ट किया है। और अगर आप अपनी बात को ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो डेफिनेटली वो आपको काउंसिल करेगा, हेल्प करेगा, या तो आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा या हैप्पीली आपको सेपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल, क्योंकि असली दोस्तों की पहचान आपको ऐसे ही समय में होती है कि जब आप कठिन एग्जैक्टली और कौन अपना है कौन पराया है, कौन कितना अपना है, वो भी आपको उसी समय पता चलेगा। तो अच्छा है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी एक ब्रेकअप के माध्यम वाले दोस्त से कुछ होना नहीं है। जब आप दोनों खुद चीजों को सेटल नहीं कर पाए तो तीसरा क्या कर लेगा? बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोग केवल मजे लेने के लिए, जैसे आपने कहा, तो मुझे लगता है कि उनकी आग में घी डालना बेकार रहेगा। ऐसे लोगों को अवॉइड और इग्नोर करना ही बेहतर है। नहीं तो अगर आप उनकी बात को अपने दिल पे लोगे तो और अपने आप को नुकसान पहुंचा दोगे आप। हाँ, तो वही इनिशियल स्टेजेस में हमेशा बेटर रहता है कि आप सामने वाले को परख लें और अपने इमोशन अपने पास ही रखें तो बेटर है। एक बड़ा सुंदर सा दोहा है, रहमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुन लोग अटी लेंगे दुख ना बटायो कोई। तो कोई भी आपके उस समय हेल्प नहीं कर सकता, सुन के सब मजे जरूर ले लेंगे कि अच्छा उसने ऐसा किया, हम तो तुम्हें पहले ही कह रहे थे वो ऐसा ही है। तो this is the kind of things that some people may add to. So it's better not to share your intimate details with somebody else. और ऐसे टाइम पे ही पता लगता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। Exactly. क्योंकि उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग तो
कहते हैं ना कि यही कलयुग की पहचान है कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। हाँ, तो छोड़ दोस्त क्या देती चीज है। है। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो आपको खुद ही सेल्फ हील करना होता है और चीजों को हैंडल करना होता है। जी, हम That's how life एपिसोड goes 2 on. का जो हमारा पार्ट है उसमें टोटल हम सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव और सेल्फ केयर पे डेडिकेट करेंगे। Okay. तो आज का जैसे आपने हमें कहा था कि हम लेट अस ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट्स, तो द रीजन वाज दिस कि लेट अस कवर दीस प्रिलिमिनरी थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि ब्रेकअप होते ही दोस्त भी इन्वॉल्व है, समाज भी इन्वॉल्व है, वर्क प्लेस भी इन्वॉल्व है, सडनली आपका जो कपल आइडेंटिटी था इट इज लॉस्ट। तो पहला तो मेजरली आपने इस चीजों से डील करना होता है और उसको ग्रेसफुली कैसे डील करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हीलिंग में सबसे ज्यादा सेल्फ केयर और सेल्फ लव आता है, तो वी विल बी टेकिंग अप इन द सेकंड एपिसोड। तो एक और उसको हम क्वेश्चन तभी आपसे पूछना चाहूंगा, अभी मेरे ध्यान में आया। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक इन आफ्टरमैथ ऑफ ए ब्रेकअप? अरे वाह, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो हम भी वी मस्ट हैव आल्सो डन इन आवर टाइम्स, चाहे वो रिलेशनशिप इंटीमेट रहा हो चाहे फ्रेंडशिप्स। जब भी आपका ब्रेकअप हो, और सबसे पहला रूल है गो नो कांटेक्ट। आप अपने एक्स के साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट ना रखें, वो बेटर रहता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कई बार जब ब्रेकअप होता है तो सामने वाला फ्रेंडशिप नाम का गाजर लटका देता है कि लेट्स बी फ्रेंड्स, तो वो होना पॉसिबल नहीं होता जब तक आप एक्सेप्टेंस की स्टेज तक नहीं पहुंचे। तो प्लीज इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप अकेले में हील करना बेटर होगा। जरा सा भी होप का अगर वो रहेगा कीड़ा आपके दिमाग में, तो आप आगे पीछे ही अपने दिमाग में होते रहेंगे और वो स्टेजेस को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो पैक अप ऑल द गिफ्ट्स, पैराफर्नेलिया, जो भी आपको म्यूजिक कार्ड सब मिले हैं एक कार्टन में डालें और कहीं उसको छुपा दें और अपनी ब्रेकअप की जर्नी की जो हीलिंग जर्नी है उसको फास्टन करें। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिबाउंड रिलेशनशिप। एक कहावत है, द बेस्ट थिंग टू गेट ओवर इज टू गेट अंडर। डू नॉट गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप्स इमीडिएटली आफ्टर अ ब्रोकन रिलेशनशिप, क्योंकि आपको पहले हील होना जरूरी है। अगर हीलिंग के बिना आप करेंगे तो वही पैटर्न्स, वही सारी चीजें दूसरे रिलेशनशिप में भी दोहराएंगे। तो डू नॉट गेट इनटू रिबाउंड रिलेशनशिप्स टिल द टाइम यू हैव हैड सम टाइम फॉर हीलिंग योरसेल्फ, रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स। ये पता चल जाए कि मेरा क्या गलत था, सामने वाले की क्या गलती थी, वो होने के बाद ही आप रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़े। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप, जैसे मैंने पहले कहा, अपने रूटीन को हमेशा फॉलो करें। रूटीन गोज फॉर अ टॉस। आप उठ नहीं रहे, समय पे सो नहीं रहे, नहा नहीं रहे, धो नहीं रहे, ये सब नहीं करें। सेल्फ केयर और रूटीन को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करें, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है। एक हम और जो होता है कि जब ब्रेकअप होता है तो हमारा मन करता है कि हम अकेले बैठ के रोएं। तो जो आप अपना सोशल जो सपोर्ट नेटवर्क है, चाहे वो आपकी फैमिली है चाहे फ्रेंड्स हैं, आप उससे अपने आप को कट ऑफ नहीं करें, नहीं कर सकते। उनको बिल्कुल, और करना भी नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए है। आप अकेला फील कर रहे हैं तो मिले उनसे, सैड फील कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करें। दे ऑलवेज हेल्प यू कम आउट ऑफ द इमोशनल बैगेज विच यू आर डीलिंग विद। लॉनलीनेस को ओवरकम करने के लिए सोसाइटी में रहना है और सोशल सर्कल के साथ कनेक्ट होना है। बिल्कुल बिल्कुल। और पर ये होता है कि कई बार होता है कि आपका एक ही फ्रेंड है, अगर आप उसको रोज दुख भरी दास्तान सुनाएंगे तो वो भी भाग जाएगा। तो रीच आउट टू ऑल द सपोर्ट दैट यू कैन गेट, बी इट फैमिली, बी इट योर ब्रदर सिस्टर, बी इट योर फ्रेंड्स, बी इट कम्युनिटी। चाहे भगवान में आस्था आपको अगर तार रही है तो उसका भी आप जरूर सहारा लें। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना बिजी रहना बहुत जरूरी है। जितना आप व्यस्त रहेंगे ना, लाइक आप अगर अपने आप को आप बिल्कुल ब्लैंक कर देंगे कि आपने काम करना छोड़ दिया है या वर्क प्लेस पे जाना छोड़ दिया है, इनएक्टिव आप फील करते हैं, डोरमेंट आपका बिहेवियर हो गया है, तो आप अपने लिए चीजों को और एस्केलेट कर रहे हैं। तो जितना आप बिजी रहेंगे तो यू विल नॉट थिंक अबाउट द पास्ट इवेंट्स, और फिर वो आपकी हीलिंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा। बिल्कुल, पर वही बात है कि बिजी होने के साथ साथ ग्रीविंग का भी एक प्रॉपर टाइम रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि अपने वर्क को हम एक तरह का सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं कि मैं इमोशन फेस ही नहीं करूंगा जब मैं इतना बिजी होऊंगा, तो वो भी हीलिंग के प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर देगा। तो एक बैलेंस होना जरूरी है।
डेफिनेटली आप ग्रीफ भी करें उस प्रोसेस को, बट अपने आप को अपना रूटीन नहीं खत्म करें, सेल्फ केयर नहीं खत्म करें। तो ये सारी चीजें हैं। Right. जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। ओह उनको यस। लगता है कि इसके जरिए मैं अपने आप को बिजी रख पाऊंगा, बट हाँ जी, होता हाँ क्या है, जी, उसका साइड इफेक्ट और ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है, क्योंकि जी, आप जी, जी। नेगेटिव चीजों को देखना शुरू कर देते हो हम्म, और हम्म, आप अपने एक्स पार्टनर को बार बार उसके प्रोफाइल को स्क्रॉल करते हो। कुछ लोग उसको ब्लॉक हम्म, देते हैं या अनफॉलो कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप हम्म। क्या एडवाइस करना चाहोगे? देखिए अगेन आपने बहुत अच्छा कहा। आजकल बड़ा फैशन है स्टेटस में फिर वो दुख भरा कुछ दुख भरा, इमोजीज अभी वो लगाएंगे या देखे। दुख भरी, हाँ। हाँ कुछ रहेगा कि भी मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखेंगे कि लोग अपने इमोशंस या जो गुस्सा है वो सारा व्यक्त कर रहे हैं और एक पब्लिक उसका मतलब कई बार आप वो बना देते हैं, तो विच इज रॉन्ग। रही बात अपने उसको अनफॉलो करने की या ब्लॉक करने की, अगर तो ब्रेकअप म्यूचुअल हुआ है तो जनरली क्या होता है कि दोनों पार्टीज तैयार होती हैं और ऐसे में जरूरत नहीं पड़ती ब्लॉक करने की या अनफॉलो करने की। यू कम टू अ पॉइंट जहां एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप से निकलने से पहले आ चुकी होती है, राइट। दिक्कत आती है जहां पे एक पार्टी तैयार नहीं है और एक पार्टी ब्रेकअप करना चाह रही है। तो ऐसे में अगर आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे या रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है, तो ऐसे में ब्लॉक करना, अनफॉलो करना बेहतर रहेगा। तीसरा, अगर आपको लगता है कि जैसे टिंग करके आवाज आई, नोटिफिकेशन आई और आप भागकर अपना कहीं मैसेज तो नहीं आया कहीं, तो अगर ये वाला रहेगा तो ये भी आपकी बॉडी को एक क्रॉनिक स्ट्रेस की स्टेट में रखता है कि अरे नोटिफिकेशन उसका तो नहीं है, उसका तो नहीं है। अगर आप इस तरह टेम्पटेशन फील करते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर टू ब्लॉक एंड अनफॉलो द अदर पर्सन। तो ब्लॉक करना है, अनफॉलो करना है इज डिपेंडेंट ऑन आपका इमोशंस को डील करने की कैपेसिटी कितनी है और इंटेंसिटी कितनी है। राइट। जी, थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे इंसाइटफुल थॉट्स इस टॉपिक पर दिए। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे हम इसको ओवरकम करें। लाइक बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम चल रही है कि ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, देयर माइट बी नंबर ऑफ रीजंस, वो हो गया, बट उसके बाद की जो जर्नी है दैट इज क्वाइट पेनफुल एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड द वे हाउ टू स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस। तो जो कुछ भी आपने इनपुट्स दिए हैं उसके जरिए मैं पूरा आश्वस्त हूं कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप ब्रेकअप को ओवरकम कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं और अपने आप को कैसे सेल्फ हील कर सकते हैं। बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन हु कैन हैंडल योर सेल्फ इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो जब तक आप अपने खुद की हेल्प नहीं करोगे तो यू कैन पुट योर सेल्फ इन लॉट ऑफ ट्रबल्स। लाइक और जिंदगी ना चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अभी आपने किया, देयर माइट बी नंबर ऑफ रीजंस फॉर इट एंड यू कुड नॉट कंट्रोल इट, बट नाउ यू हैव टू मूव ऑन। और वो तभी हो सकता है जब आप पास्ट इवेंट्स के बारे में नहीं सोचोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते ट्रैफिक जैम हो गया, तो द थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स, तो आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। और जब वो जैम हट जाएगा देन यू विल मूव ऑन। तो एक तरीके से जब ब्रेकअप होता है तो आपकी लाइफ में ऐसे ही एक हिंड्रेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। तो आप उसको एक लर्निंग प्रोसेस लीजिए और सीखिए कि आपने क्या गलतियां की है जिससे कि आप दोबारा से उनको रेप्लिकेट ना कर सको। हो सकता है कि आपका दोबारा से रिलेशनशिप उसी पार्टनर के साथ रीइंस्टेट हो जाए। अगर आप एक मैच्योर पर्सन है और आप अपनी गलतियों को समझ जाओ, दोनों समझ जाओ, तो इट विल बी इजी। पर ऐसा अक्सर कभी कभी हो भी जाता है कि बहुत दिनों के बाद आप दोनों ने रियलाइज किया कि हमने कहाँ गलतियां की, लेट अस रीयूनाइट, ठीक है। बट अगर आप समझना नहीं चाहते और उन गलतियों को रिपीट करते जा रहे हो तो ब्रेकअप्स होते रहेंगे और ऐसा भी कई लोगों के साथ होता जा रहा है। तो अपने आप को इस तरह की ट्रबल में ना डालिए, ठीक है ना। एंड बी कॉन्फिडेंट एंड मूव ऑन। ब्रेकअप इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट हैज हैपेंड विद मेनी पीपल
लाइक आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है, और वो अपने पर्सनल नैरेटिव्स एक्सप्लेन करते हैं कि उनके साथ ये क्यों हुआ। ठीक है ना? आप भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ हो गया, लोग क्या कहेंगे, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उनके बारे में बिल्कुल सोचना ठीक। छोड़ दीजिए, और आप दूसरों को भी काउंसिल कीजिए कि ये आपके साथ ऐसे हुआ और आप ये गलती ना करना, तो आप दूसरे के लिए बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। दिस इज व्हाट। बहुत आपने हाँ खूबसूरत बात कही, और जो जैम की एनालॉजी आपने दी बहुत ही खूबसूरत है कि थोड़ी देर के लिए रफ्तार रुक जाती है, पर जीवन है, हाँ, दोबारा चलना चलता पड़ता है, रहेगा। और हम कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहते हैं। राइट। आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं और कलीग्स हैं, उनके साथ जिंदगी का आनंद लीजिए। जीवन के एक पड़ाव में आप फेल हो गए हैं, लेकिन बाकी में आप अपने आप को फेल मत करिए, और हो सकता है कि अगर आपने हार नहीं मानी तो दोबारा से आपकी जीत हो सकती है, आपका फिर से हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए ट्राई करना होगा, मैच्योरिटी शो करना होगा। तो ये पॉडकास्ट का पहला एपिसोड था, since we have to discuss on many aspects and many dimensions of this. In the second episode, we will discuss the insightful strategies and tips. How can you overcome the breakups, and how can you handle yourself and start the healing process? And we will also discuss the self healing, because आप खुद हो जो अपने आप को बेहतर तरीके से हील कर सकते हो। Thank you so much for watching this podcast. He has expressed all the dimensions of this podcast in the most effective manner. तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, stay connected till we release the second part of this podcast. And if you have not subscribed to our channel, please do it so that you may not miss the upcoming episodes. राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छा आपने एक मंच प्रदान किया हमें डॉक्टर रोहित, और मैं आशा करती हूँ कि सभी हमारे व्यूअर्स इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो आई थिंक जल्दी मिलते हैं हम अपने सेकंड एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you so much.